Uh, okay, so we should be live on Facebook very soon. Arbab, can you check? Yes, just checking. Yes, Yes. wait a minute. Yes, we are live. Okay, cool. So now, should we just open it up? Because I put, well, so when somebody joins now, I should get a message, right? Yes, yes, yes. So I haven't got any message. Or should I just change the setting to allow everyone? Yes, please allow everyone to join. Okay, so anyone should be able to join now. Hi, for those who've just joined, we're waiting for a few more people before we get started. Yasmin, did you get any requests of people joining in? No, I didn't, but people are joining, right? Okay, yeah. Because I changed the settings, so anyone should be able to join.
So, hey, hello everyone. We're just waiting for maybe a few more people before we start. I think we can start now about, okay? Yes, Um, we can. Yeah, Yes. yeah. So hello everyone. Thanks for joining today. I'm Yasmin Fatima from the founder of Foundation for Equal Citizenship, and really excited about our second event, second webinar as part of the series Nari, where we're talking to young women in different avenues that they're making an impact. And our focus is, like I said, primarily on young women so that they can talk about their stories, their experiences, and also be a source of inspiration for everyone. Foundation for Equal Citizenship is an organization that was established in 2015, and we primarily work in the Trilokpuri area. We have, the concept of adopting a community and addressing different social issues that are interrelated. Our main area of work is education, but it's more about strengthening skills in maths, English, developing leadership skills, creative ways of thinking. And we are trying to give leadership to people from the community itself. So the center over there called Kadam is really run entirely by people who were born and raised in Trilokpuri. And we encourage, the youth to participate, as volunteers, as interns. We've had a few interns from different organizations, different colleges, universities over these years. And we'd like more to join so that we can do more things, more fun, more creative ideas from you all young people, and expand our work. With that, I am going to now let the speakers introduce themselves. Let's hear it from them. Navkiran. Thank you. For introducing your organization, and also thanks for having us today as speakers here. So as you said, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके उसमें बात करूंगी.
मेरा नाम है नवकिरण। मैं पेशे के तौर पे एक डेंटिस्ट हूँ। मैं बतौर डेंटिस्ट काम करती रही हूँ लगभग 4 साल चंडीगढ़ में। And then I did masters in film studies from Ambedkar University, Delhi. That was the time when I moved to Delhi in 2017. और उसके अलावा जो कारण है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ शायद, वो ये है कि मैं पिछले लगभग 15 सालों से, स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्कूल डेज, एंड active with student organization, All India Students Association and Youth Organization, RYA, Revolutionary Youth Association. So I can say I'm also an activist from last almost 15 years now. और पिछले अब 10 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 10.5 महीने से मैं जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, या कह सकते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर भी उस किसान आंदोलन का एक एक्टिव हिस्सा हूँ। और इसी किसान आंदोलन के दौरान हम कुछ यंग लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया, एक अखबार वहां से निकालना, पत्रिका वहां से निकालनी शुरू की जिसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। तो मैं फिलहाल ट्रॉली टाइम्स की को एडिटर के तौर पे भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और दैट्स इट। The recording will start. Oops, sorry, I was on mute. My apologies. Sadia, what about you? What's your story? Hi everyone. So I'm Sadia Khanam, and thank you so much for having me and my team here today. It is an honor. So I'm a 23-year-old student. I am a teacher and a social entrepreneur. I work with this organization which is called Agaz Taaleem, and we started it in 2017. So it's it's an NGO basically, and what we do, we try to provide education to the underprivileged children. And how this idea started was like I give home tuitions already, and I have been teaching in the government schools. So I did 2 internships there. So like we have noticed how like those children are not getting enough education through schools. So this idea came from that also. कि like हम चाहते थे हम basically इनको एक home tutoring दे, जैसे कि हम Sadia, sorry, just a minute. I just want to request everybody to mute so that we don't get an echo. Thanks. हाँ. So मैं continue now? जी हाँ सादिया. Okay, good. All right. So like the basic idea behind starting Agaz Taaleem is कि जैसे हम स्कूल जाते हैं और फिर हमारी काफी हद तक हमारी एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो हम ट्यूशंस लगाते हैं. So हम भी यही चाहते थे कि हम बच्चों को एक होम ट्यूटरिंग जैसा कुछ स्टार्ट करें, उनके घर जाके उनको पढ़ाएं. So this was the main sole idea behind starting Agaz Taaleem. And what we do, we recruit tutors and fellows across Delhi, and then we appoint one student to one teacher, and then we go to their houses and or any particular school or a center. Then we give them education for 3 years, and we conduct workshops to build up their personalities, to improve their skills. So this is what we have been doing from last like 3 to 4 years around, and we just love this work, and it makes us happy. It gives us peace, satisfaction to see those children smiling and growing in a much better way. So yeah, that is my story. Thank you. Yeah, it's very inspiring to see such young people getting into this field, you know. And we have somebody similar doing similar work, Amreen. तो अमरीन आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. Hi Yasmin ji, good evening. Thank you for giving us this platform to share our work and be with such enthusiastic people who are doing wonderful work in their fields.
So basically, I am Amreen and I'm running a social enterprise non-profit organization named Aru Foundation based in Okhla. And I am a co-founder of an initiative which is Each One Feed One, where we are working on the skill development and feeding program in Delhi. So basically, the whole idea behind both the initiative is to work for the everyone, even the people who are right now with us. Everyone want best in their life, and especially in the education. When a child borns, parents start thinking about education of the child, which school, which coaching center, which extracurricular activities. But most of the children with whom we are dealing are not so much privileged to have these options, and they are not privileged to have such institutes where they can go and learn things. So basically, we are the medium where we are acting as a medium which helping children to be in the government schools, to be part of good extracurricular institutes where they get training. So if I tell about my work, which is we have enrolled around 300 children, especially homeless children, the children living in slums, to government schools, and helping them to be in a formal education system so that they understand the formality of the system, and teachers in the school also understand their duty and their work. Secondly, on the menstrual hygiene part, we are till now in the past 2 years, we are able to connect with 5,000 women through menstrual hygiene awareness sessions, distribution of sanitary napkin. And from past 1.5 years, we are able to connect around, we are providing cooked meals to children, especially children whose parents lost their jobs and who are daily wages or living in the streets. So we have covered around 1 lakh children by providing one-time meal in different parts of Delhi. Other than that, currently in Delhi, we are running a women entrepreneur program where we are providing skill training to the women who are survivors of domestic violence, refugees. So currently we have around 70 women who are associated with us, and they are trying to learn a new skill so that they can become financially independent. So thank you, Yasmin. Great. Wow. Amreen, I know when you started because I've kind of met you over, a period of time. And I think the जितना progress आपने, करा इतने सालों में मुझे बहुत impressive लगता है. काफी grow हो गया आपका काम. It's really nice to hear that. I wanted to ask both you, Sadia, and Amreen. There are a lot of NGOs. दिल्ली में ही बहुत NGOs हैं, और खासतौर से जहाँ आप लोग रहते हैं उस इलाके में तो बहुत ही हैं. तो अपना NGO क्यों शुरू करना? किसी और NGO के साथ क्यों नहीं जुड़ जाना? Either of you can answer. Yeah, I would like to answer that. Actually, the idea was not exactly to start an NGO. So we used to hang out in a university, and there were some students, there were children, basically children of laborers and workers. So we used to hang out with them, and while like meeting them every day, we decided to teach them for a bit. And at that time, like हमने उनके पेरेंट्स से काफी डिस्कस किया इस बारे में कि अगर हम उनको रोज आके पढ़ाते हैं और फिर हम चाहते हैं उनको स्कूल में एनरोल कराएं. So they really liked the idea, but at the end they told us कि हम migrant laborers हैं. Once the construction is over, we will leave this place. So I was like, okay, ठीक है, ये काफी like genuine सा concern है. तब we thought कि ठीक है, ऐसे और भी काफी बच्चे जिनको हम पढ़ा सकते हैं, तो स्कूल में एनरोल करा सकते हैं, but we have to make sure कि वो वहीं पर रहते हो. So उसके लिए we found this particular area, Shram Vihar, which is near Shaheen Bagh metro station. और वहां जाके हमने कुछ बच्चों से मिले, उनको पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में एनरोल करना स्टार्ट किया. ऐसे 1 साल हुआ, फिर सेकंड ईयर वी डिड द सेम थिंग, देन थर्ड ईयर, तब वी डिसाइडेड कि ठीक है, वी शुड run it as an independent organization. So we started it as just like an idea, or we can say a hobby. फिर हमने then we just shifted to professional work. So in fact, Amreen's center is also there besides Ara Ghazal Zalim Center. Yeah, each one free Vidya, it's there only. And what about you, Amreen? You worked with other organizations, pretty prominent organizations, right? But you wanted to
have your own. Huh? So basically yes, when मेरा जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था, ये मतलब इनिशिएटिव ही था जब हमने आरू फाउंडेशन शुरू करा था, तो 2017 में हमने रजिस्टर कराया था। उससे पहले 3 साल पहले तक हम लोग जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब जब हम पढ़ाते थे कम्युनिटी में जाकर, तो शुरू में हमें काफी चैलेंजेस आए थे, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट चैलेंज ये रहता था कि जो कम्युनिटी में फैमिलीज थी या पेरेंट्स थे, उनका ये रहता था कि आज आप आ रहे हैं, कल कोई और दीदी आ जाती है, परसों कोई और भैया आ जाते हैं, तो हम किस पर ट्रस्ट करें अपने बच्चों को लेकर, आप लोग तो आएंगे चले जाएंगे। एंड उस टाइम हम सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, तो थोड़ा सा उन्हें और वो होता था कि आप कॉलेज से आते हैं, अपना टाइम, आपका असाइनमेंट होता है, कर चले जाते हो आप लोग, तो हमारे लिए हमारे बच्चों पर इफेक्ट होगा इस चीज का बहुत ज्यादा। तब हमें रियलाइज हुआ कि ये सच्चाई है कि बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू होते हैं कॉलेज टाइम में, या फिर लोग शुरू करते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते, और कोई ये नहीं सोचता है कि सस्टेन आप नहीं कर पा रहे हो पर उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी पर पड़ा है बहुत ज्यादा। और स्पेशली बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं, क्योंकि बच्चे आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और उनको छोड़ना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी और ट्यूटर के साथ, किसी और के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। तब हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग शायद हम चले जाएं पर इनिशिएटिव चलता रहना चाहिए। उसके लिए हमें पावर्स किसी को देनी है, कुछ लीगैलिटी करनी है, उसके लिए हमें जरूरत थी आरू फाउंडेशन की। तब हमने इसे रजिस्टर कराया। इवन बिफोर रजिस्टरिंग इट वी थॉट कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और उन्हें हैंड ओवर कर देते, बट द वैल्यू इज कि किसी का आइडिया मैच नहीं हो रहा था हमारी कोर टीम के साथ जो वो चाह रहे थे, तो वहां पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। तब हम लोगों ने रजिस्टर कराया था ये। Okay. Navkiran, okay, yours, you have done a lot of interesting things, and of course trolley times, जैसे कि आपने भी बोला, उससे शायद लोग आपको बहुत जान गए हैं। तो trolley times का आगाज कैसे हुआ, कैसे सोचा इसकी जरूरत है, उसके बारे में शायद लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी I think it'll be good to hear from you. And also, like, why you thought of that when you, in fact, did some filmmaking, right? You have experience in filmmaking, but is it because you can see just farmers protesting, this medium of print media would probably be better for them? Kind of like, was that the thought process? You don't mute. Yeah. So actually, the initial idea was there were two reasons. One, we were looking for our role in the farmers movement. We as young people who were part of the movement from day one, but who weren't the main face of the movement, because हमें ये तो श्योर था कि किसानी का आंदोलन है और किसान नेता ही हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे यंग लोग होने के नाते जो उन्हीं किसानी परिवारों से आते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस मूवमेंट की मदद कर पाए, इसको आगे बढ़ा पाए। तो वो दोनों साइड से था, हमें अपना भी रोल खोजना था और कुछ ऐसा करना था कि मूवमेंट को भी उसका फायदा हो। तो तब हमने रियलाइज किया कि पिछले लंबे समय से, पिछले 7 साल से स्पेसिफिकली, जब से बीजेपी सरकार जीत के आई है, तब से हम एक चीज रियलाइज कर रहे हैं, एक टर्म जो शायद हमने पहले नहीं सुनी थी, वो हम सुनने लगे हैं, वो है गोदी मीडिया। किस तरीके से मीडिया, जितनी भी बड़ी मूवमेंट हुई हैं पास में, पॉलिटिकल मूवमेंट, वो बेशक जेएनयू या एचसीयू के स्टूडेंट्स की हो, सीट कट या फी हाइक के खिलाफ, वो बेशक एनआरसी की मूवमेंट हो पूरी, या वो अलग अलग स्टेट्स में चलने वाली यूथ मूवमेंट हो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ यंग लोग लड़ रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं जो प्रो स्टेट मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। और यही सेम फार्मर्स मूवमेंट के साथ भी करने की कोशिश की गई। शुरू में बोला गया अरे ये तो खालिस्तानी है, क्यों? क्योंकि आपको सरदार दिख रहे हैं उसमें, बड़ी गिनती में पंजाब के किसान जो पगड़ी पहनते हैं वो उस मूवमेंट का हिस्सा है, तो उसको बोल दिया कि अच्छा ये तो अलग से अपना मुल्क मांग रहे हैं, खालिस्तान मांग रहे हैं।
फिर लाल झंडे दिखे उसमें तो बोल दिया अरे ये तो माओवादी हैं। तो हमें लगा कि ये जगह है जहाँ पे हम अपना रोल निभा सकते हैं, क्योंकि जब स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचने दे रहा लोगों तक, तो हमें उसका कुछ ऑल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा। और ये भी था कि हमारे किसान बहुत सारे उतने आर्टिकुलेटिव नहीं थे, एक लैंग्वेज बैरियर था जबरदस्त, बहुत पंजाब से हरियाणा से किसान थे, मतलब पंजाब वाले स्पेशली हिंदी में इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे चीजों को, और कुछ भी मतलब रैंडम गोदी मीडिया जाके किसी के भी मुंह में माइक घुसा के कह देता था कि अच्छा बताओ क्यों कानून वापस ले जाने हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हम ठीक है सारे यूनिवर्सिटी तक जाने का हम लोग को प्रिविलेज मिला है, तो उसका फायदा उठाते हुए हमने तीनों कानूनों को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उसको देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसको एक माध्यम के बतौर चुना। उसमें देखिए आगे हमारे पास दो ऑप्शन था कि जिस तरीके से हमारे आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरीके से भी हम चला सकते थे। लेकिन ये था कि हमारा जो मेन टारगेट हमारी ऑडियंस थी वो थे किसान, ज्यादातर रूरल इंडिया से आने वाले, जिनमें मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, एकदम बड़ी उम्र के लोग हैं। उन लोगों के लिए आज भी खबर के मायने, पुख्ता खबर के मायने एक अखबार है, उनके लिए मीडिया का मतलब अखबार है। तो हमें लगा कि अखबार ही होना चाहिए क्योंकि उसकी एक अपनी ऑथेंटिक वैल्यू है ना? तो इस वजह से हमने उसको प्रिंट में लाना शुरू किया। एंड शुरू में हम सिर्फ कह लो इनवर्ड ही देख रहे थे, हम मोर्चे को टारगेट कर रहे थे कि ओके यहाँ पे इतने किसान हैं, वहां तक हमें बात पहुंचानी है, बाकी मोर्चों पे क्या हो रहा है या स्टेज की क्या कार्रवाई है, एक इंटरनल माध्यम के तौर पे इसको ले जाना है। लेटर वी रियलाइज जिस तरीके का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला उसमें हमने रियलाइज किया कि नहीं, हमें बाहर भी अपना अप्रोच बनाना पड़ेगा, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हुए it wasn't possible for us to like post the newspaper for people who are sitting in the diaspora. So then we started online distribution of Trolley Time. So we created our social media handles, Instagram, Facebook, Twitter, and we got a huge response. मतलब कुछ ही दिनों में हमारे कई हजारों में फॉलोअर्स हुए। एंड और मतलब आफ्टर पॉइंट वी रियलाइज कि लोग किसान आंदोलन के बारे में जानने के लिए हमें एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के तौर पे समझने लगे, हम पे वो भरोसा करने लगे। तो मेरा ख्याल वही हमारी एक तरीके से कह लो कि हमारे लिए अच्छी चीज वही हुई। हमारे पास ये प्रिविलेज थी कि हम खुद आंदोलन का हिस्सा थे, हम कोई बाहर से आए थर्ड पार्टी जर्नलिस्ट नहीं थे, हम खुद आंदोलनकारी भी थे। तो इसलिए शायद हम बहुत सारे उस तरीके नैरेटिव भी ला पाए, उस मूवमेंट का ह्यूमन एंगल भी एक ला पाए, जिससे लोग ज्यादा हम लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो ये हमारी पूरी जर्नी रही, जिसको हमें अभी भी कंटिन्यू करने की कोशिश में है। So क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इन इवेंट्स का फोकस वुमेन पे है, मैं पूछना चाहती थी इस आंदोलन में काफी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं। आई मीन इट्स अमेजिंग दैट दे आर ऑन द स्ट्रीट्स फॉर such a long period of time. So there were two questions I wanted to ask you. एक तो women's involvement कैसा देखा जाता है? नंबर्स जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, नंबर्स सिर्फ या ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी तो माँ मतलब एक activist or she's been part of movements, so she probably has observed over the period of many years whether there's been a change in terms of women's participation for the positive or the negative, क्या फर्क आया है। और दूसरा ये भी कि what has your experience been as a woman, as somebody who has been part of the team of editors who started this? A woman's voice does make a difference. And what has your experience been with the co-editors as well as with the people in the movement? कुछ आपने क्या observe किया, कुछ share करें?
देखिए बहुत मैं मतलब कहा, मैं खुद ऑलमोस्ट 15 सालों से, मतलब आई वुड से लाइक 15 सालों से तो मैं एक्टिव हूँ, लेकिन उससे पहले से जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बेशक ना रह के एक पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे शुरू से इन मोर्चों का हिस्सा हूँ, बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स आर एक्टिविस्ट। तो मैं जब से पैदा हुई हूँ वो मुझे लेके रैलियों मजारों में हर जगह जाते थे। और मैंने किसान आंदोलन भी पहले बहुत दफा देखे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर वन लाइक लॉन्ग किसान मूवमेंट जो कि लेट 90s में हुआ था, और उससे कई दिनों तक दिन रात पंजाब के अलग अलग जगह शहरों में हम लोग रेलवे ट्रैक्स पे रहते थे। तो उन सारे आंदोलनों में मैंने कभी महिलाओं की इतनी गिनती पार्टिसिपेशन की नहीं देखी जितनी मैंने इस आंदोलन में देखी है पहली बार। तो उस लिहाज से सच में एक नया, मतलब एक नई चीज जो उसमें है वो वुमेन पार्टिसिपेशन है इस आंदोलन में। उसकी में कई मतलब जबकि कॉन्ट्रेरी हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, खेती बाड़ी की अगर हम बात करें, तो उसमें लगभग 50% महिलाओं की शमूलियत है। अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की भी हम बात करें, अगर उसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जोड़ दें तो वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है महिलाओं की पार्टिसिपेशन। और दूसरा ये भी है कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी है, महिलाएं घरों में खाना बनाती हैं ताकि वो जो खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं वहां तक जा पाए, तो उससे वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद जब किसानी आंदोलन हुए हैं या किसानी के मुद्दों के ऊपर कभी भी संघर्ष हुआ है, उसमें कहीं आपको उतनी महिलाएं दिखी नहीं, ये पहली दफा हुआ है। उसका मुझे एक तो एक जो बड़ा कारण है वो मुझे ये भी लगता है कि जिस कदर पिछले सालों में महिला आंदोलन बढ़े हैं इस देश में, हमने सिर्फ किसानी आंदोलन में नहीं बल्कि पिछले सालों में अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जितने आंदोलन हुए हैं उसमें हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यंग महिलाओं को पिटते देखा है। छात्रों के संघर्षों में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं। शाहीन बाग के दौरान हमने देखा है, पूरा एनटीसी के मूवमेंट के दौरान शाहीन बाग में किस तरीके से महिलाओं ने लीड लेके आंदोलन को चलाया है। तो ये एक ट्रेंड पूरा कह सकते हैं कि 2010 के बाद से एक पूरा जो जेंडर का डिस्कोर्स बदला है पॉलिटिक्स के अंदर, ये उसी के चलते मुझे लगता है इस बार भी हुआ है। और लेकिन उसमें फिर भी ये है कि अगर आप मोर्चों पे जाओगे तो आपको महिलाएं दिखेंगी, नो डाउट। मतलब पहले के किसानी आंदोलनों के कंपैरेटिवली आपको बहुत महिलाएं दिखेंगी। फिर भी जब आप उनको पुरुषों के बराबर रख के देखोगे तो वो परसेंटेज बहुत कम होगी। तो मुझे लगता है कि उस पर भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए अभी भी एक अनफॉर्चुनेट स्थिति ये है कि जितनी महिलाएं आंदोलन से मतलब प्रोटेस्ट साइट के ऊपर बैठ के इस आंदोलन को चला रही हैं, उससे कहीं ज्यादा पीछे घर संभाल रही हैं सो दैट मर्द जाके वहां पे लड़ सके। सो इट्स मोर लाइक अ वॉर फ्रंट, कि पुरुष वॉर फ्रंट पे हैं और पीछे महिलाएं पूरा घर भी संभाल रही हैं, खेत भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, जानवर भी संभाल रही हैं, सब देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी महिला की पार्टिसिपेशन को देखा जाना चाहिए। अगर उस लिहाज से देखें तो इट्स अ ह्यूज पार्टिसिपेशन। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाएं इस आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ बनी है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो मुझे लगता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव से एक इंटरेस्टिंग चीज किसान आंदोलन के अंदर हुई है, वो है काम को लेके जो हमारे टिपिकल जेंडर रोल्स जिस तरीके से सोसाइटी में डिफाइंड थे, उनमें एक जरूर चेंज आया है। बिकॉज आई माई सेल्फ कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, पंजाब का एग्रेरियन फैमिली, जहाँ पे लाइक ये पंजाब हरियाणा पूरा नॉर्थ इंडिया में एक अलग किस्म का मेल मैस्कुलिनिटी है। डोमेस्टिक स्पेस में या कह लो किचन का स्पेस में पुरुष की पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। और अभी 10 महीनों से मैंने मोर्चों पे रहते हुए देखा है किस तरीके से बहुत सारे पुरुष हर उम्र के,
वो वहाँ रसोई में अपना खुद खाना बना रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। एक लड़का, मैंने वो रोटियां बना रहा था और मैं पास में बैठ के खा रही थी, तो मुझे भी कहता दीदी जब मैं आया था ना, मुझे ना आटा भी गूंदना नहीं आता था, अब देखो मेरी रोटियां कैसे फूल रही है ना। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। एंड मतलब एक तो है कि वो काम करना, एंड उससे भी इंटरेस्टिंग है कि किचन के काम के आसपास पूरी एक बातचीत होना, क्योंकि उसी में से एक और मिडिल एज्ड मैम, वो ही टर्न टू मी एंड सेड कि कहता पहले कभी घर जाते थे ना, कई बार कहता सोई हुई बीवी को भी मैं उठा के बोलता था कि यार उठ के 5 लोगों का खाना बना दे। कहता तब लगता था इट्स नॉट अ बिग डील। कहता अब जब खुद बनानी पड़ रही है ना, अब समझ में आ रहा है कि 5 लोगों का खाना बनाना क्या होता है। तो दैट वाज समथिंग लाइक दैट्स अ बिगर चेंज जो शायद लंबा समय रहेगा। एंड पूरा मतलब वहाँ पे, क्योंकि हम वी आर आल्सो रनिंग अ लाइब्रेरी एट द टिकरी प्रोटेस्ट साइट इन द नेम ऑफ शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में मैं बैठी रहती थी, पूरा दिन संभालती थी लाइब्रेरी। कई बार तो मैं आसपास देखती थी जो पुरुष लोग किचन संभालते थे, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाते, उनके बाद उनकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, अरे रात में खाने में क्या बनाना है, अच्छा ये सब्जी बना लेते, अच्छा तू प्याज काट दे, तू ये कर दे। तो वो पूरा मतलब किचन के आसपास मर्दों को डिस्कस करते हुए सुनना, वो एक बड़ा मतलब मेरे लिए कल्चरल चेंज है, और मुझे लगता है वो इस मूवमेंट के चलते ही पॉसिबल हो पाया है। तो दैट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रहेगा, इस सोसाइटी के साथ रहेगा। दैट्स समथिंग जो एक कल्चर का हिस्सा शायद बन पाएगा। मतलब एंगेज करते हुए उनसे बहुत सारे लोगों से बात हुआ कि अच्छा आप पहले खाना बनाते थे, कहते ना जी पहले तो कभी ना बनाते थे। तो मैंने कहा अच्छा अभी जाके बनाओगे वापस ना, तो ना जी हमने तो यही कोटा पूरा कर लिया। बट स्टिल लाइक दे आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट हाँ इट इज अ रियल लेबर। तो वो मुझे लगता है मेजर ऑब्जर्वेशन है। I hope that stays। और ये वाला रोल जो है women का, घर संभालने वाला, I think there is very little recognition of that labor because it's totally unpaid labor, taking care of the family, all the household chores, वो kitchen का काम करना, उस लेबर का recognition बहुत कम होता है। So that I agree, it's a big, I think that's a big change that has happened, and hopefully they will take that home। बोलेंगे नहीं जैसे कि वो बोल रहे हैं, चाहे रोटियां ना भी बनाए घर पे। And so Amreen, Sadia, we saw a little bit of that even in the Shaheen Bagh protest, I think। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती थी, especially Amreen, because you're working on issues that are very relevant to women, right? Like domestic violence or menstrual hygiene, those topics। उसका आपको क्या रिएक्शन मिला फील्ड में भी और को दूसरे NGOs के साथ? And also this is to both of you, Sadia, Amreen। One, like, what has your experience been within the culture that you grew up in terms of kind of taking up this work, बाहर जाना, लोगों से मिलना, ये वाला काम, और फिर दूसरे NGOs के साथ वर्क करना या दूसरे साथी जो हैं इन मूवमेंट्स में, what has your experience been with men? Ours is still a pretty patriarchal society. So if you can talk a little bit about those things। both of you are on mute, तो unmute तो कर लें पहले। Yes, Yasmin. So बेसिकली जब मतलब मैं यहीं से शुरू करूँगी, पहले आपके पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से, जो डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की आपने बात करी थी। मतलब मुझे इतना समय हो गया इस सेक्टर में, और यकीन मानिए कि जब हम फील्ड पर होते हैं तो मैं सुबह सिर्फ उतना पानी पीकर जाती हूँ कि मुझे पता है कि फील्ड पर मुझे वॉशरूम भी नहीं एक्सेसिबल होने वाला है काफ़ी बार। और ये सिर्फ एक फील्ड की दिक्कत नहीं है, ये हर जगह होता है। अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो वहाँ पर वो
फ्रेंडलीनेस नहीं है कि हाँ हम बोल सके खुल कर कि मुझे वॉशरूम जाना है, या जब हम अपने पीरियड्स पर होते हैं तो हमें दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा चलता रहता है कि आज मुझे इतना ट्रैवल करना है, मुझे अपनी सेफ्टी खुद कर चलनी होगी, कैसे मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं अभी भी है। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो लॉकडाउन से पहले हमने कुछ होमलेस महिलाओं को काम पर लगवाया था सीलमपुर की फैक्ट्रीज वगैरह में, और हमने 10 महिलाओं को लगाया था वहाँ पर काम पर, और सब ने 1 महीने 15 दिन में छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ वॉशरूम नहीं था, फैक्ट्री में एक वॉशरूम नहीं था। और जब हमने वहाँ बात करी उनसे कि भैया एक वॉशरूम बनवा दें लेडीज़ के लिए, आपको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आदमी भी वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें भी ज़रूरत है उसकी, तो उन्होंने बोला इसीलिए तो हम औरतों को नहीं रखते फैक्ट्री में दीदी, आप लोगों के झमेले बहुत हैं। उन्होंने मुझे मेरे मुंह पर साफ कह दिया कि इसीलिए हम आपको काम पर नहीं रखते हैं। तो ये है कि हम लोगों को हर तरीके से रोका भी जाता है काम पर, और हम लोग प्रिविलेज्ड हैं तो हम लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं, पर जब ग्राउंड पर जाओ तो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं। और उस एक वॉशरूम नहीं होने की वजह से उन 10 महिलाओं को काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि पीरियड्स नहीं रुक सकते, वॉशरूम उन्हें रोज एक्सेसिबल करना है। अगर वो 8-9 घंटे कहीं काम करने जा रही हैं तो वो खाएंगी भी, पानी भी पिएंगी। और वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो लड़के हैं तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, औरतों को जरूरत पड़ती है इसीलिए हम लेते नहीं है, मैंने आपसे पहले ही मना करा था कि मैं नहीं लूंगा आपकी औरतों को। एक तो ये चीज है कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है कि तुम थोड़ा चेंज करोगे तो हमें भी स्पेस मिलेगा आगे बढ़ने का। वो ना वो कल्चरली चेंज होना चाह रहे हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर उतना फ्रेंडली है कि वो हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे सके चीज़ों की। सेकेंडली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ज़्यादातर ये होता है, और ये सिर्फ हमारी बात सिर्फ ये होता है कि हम बोलते हैं कि सारे सब लोग अब अवेयर हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सब, पर जब केसेस आते हैं तो हमने देखा है जो काउंसलर्स होते हैं या जो लोग डील कर रहे होते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, महिला पंचायत हो, या दूसरे एनजीओ, वो उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर वायलेंस 1 साल पहले हुआ है या अब्यूज 1 साल पहले हुआ है और महिला 6 महीने बाद या साल भर बाद आकर बात कर रही है तो बोलते हैं इतने टाइम से तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि बहुत टाइम लगता है किसी को इमोशनली उस चीज को अपने अंदर, इमोशनली प्लस मेंटली उतना स्ट्रांग होने के लिए कि आप बोल सको वो चीज। आपको अपने इमोशंस, हर कोई हर किसी के लिए एक इज्जत होती है, एक पर्दा होता है, अगर आप वो रिस्पेक्ट नहीं करें। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में हमने जो बहुत देखा है कि लोग सबसे पहले बोलते हैं डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स तो ले लेंगी पर उसके बाद सर्वाइवल के लिए कौन इंतजाम कर रहा है उनका? पेरेंटल भी नहीं सपोर्ट कर रहे, मटर्नल साइड भी सपोर्ट नहीं करी, कोई सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। बस अब सॉल्यूशंस ऐसे दे रहे हैं कि आप ये कर लो, हम ये करा देंगे। तो ये बात नहीं करता है कि आपके बच्चों को कौन खिलाएगा, आप फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ सकते हो, उन्हें उतना सपोर्ट तो करिए। एक ये चीज है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ग्राउंड पर भी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का वो, इवन जो कम्युनिटी है, जैसे सादिया भी जिस कम्युनिटी में काम करती है उस कम्युनिटी में भी हमने केसेस देखे हैं कि जब हम कम्युनिटी मेंबर से भी बोलते हैं कि आप इनका सपोर्ट पिलर बने, तो जो औरतें हैं या जो आदमी है उस कम्युनिटी के, वो खुद कहते हैं कि नहीं सब ठीक है दीदी, ये तो ऐसी रोती है, पति तो प्यार करता ही है ना, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया दीदी, आप बात बढ़ा देते हो। तो ये चीजें हमें कम्युनिटी से भी बहुत सुनने को मिलती है, और जब ये चीजें आती हैं तो जो औरत हमारे पास आई होती है उसकी हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है आगे बढ़ने की या आगे अपने केस ले जाने की भी। तो कहीं ना कहीं जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है तो हम बहुत ही ज्यादा लॉज पर चले जाते हैं, हम लीगल चीजें समझाना शुरू कर देते हैं, पर हम ग्राउंड पर नहीं समझ पाते हैं कि हमें उनकी फैमिली से क्या लेना है और उन्हें कहाँ सपोर्ट करना है। एक ये चीज है जो हम बार बार देखते हैं। और बीइंग इन द सेक्टर, स्पेशली सोशल सेक्टर, इवन दूसरे सेक्टर्स में भी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जब एज अ यंग वुमेन हम कोई चीज लीड करते हैं, ये मैंने अपने साथ देखा है कि बीइंग अ यंग वुमेन अपने 20s में जब हम एक इनिशिएटिव लीड कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हम कोलैबोरेशंस के लिए जाते हैं या किसी भी चीज के लिए बात करते हैं तो लोग सबसे पहला सवाल करते हैं अभी आपकी शादी नहीं हुई? तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, मतलब वो आपका क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, आप मेरी पर्सनल लाइफ पर काउंटर कर रहे हैं, आपको कोलैबोरेशन के लिए हम आए, आप बात करिए उस पर। तो उनका ये होता है कि अच्छा अभी शादी हो जाएगी, आप काम कर देंगे, बंद कर देंगे, आप अपना एनजीओ बंद कर देंगी, फिर कौन संभालेगा? तो ये चीजें कि आप पहले से ही अजम्पशन लगाकर बैठे हो कि मैं शादी के बाद काम छोड़ने वाली हूँ, मतलब आप लोग तैयार हैं और उस वजह से आप मेरे 10 साल की बात की चीज के लिए आज आप मेरी अपॉर्चुनिटी कट कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
एंड बीइंग विद अ टीम स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत सारे एनजीओज के साथ काम करा है और बहुत ग्राउंड पर ज्यादा लोगों में अलग अलग टीम में रहकर काम करा है, तो एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि जब भी लोग होते हैं, स्पेशली लड़के जो भी होते लड़के होते हैं या जो पुरुष हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, काफी बार वो लोग एक माइनर सा डिफरेंस भूल जाते हैं कि मजाक करो पर मजाक की भी एक लाइन होती है। आप किसी भी लड़की से हर किसी तरीके का मजाक नहीं कर सकते, एंड उसे कोई बोलता है तो फिर जैसे अगर मैं टोकती हूँ उन्हें, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये लड़की तो मजाक भी नहीं सहन कर सकती है, अच्छा ये इतना क्यों सोचती है। तो वो चीज है कि इसके लिए सबको बोलना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट वो जो एक डिफरेंस है मजाक में और रिस्पेक्ट में, वो कैसे आप लोग हैंडल करेंगे। एंड ये मुझे लगता है एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर होना चाहिए कि वो इन चीजों को सीरियसली ले। बहुत सारे एनजीओज हैं जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो नॉर्मली स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जब इंटर्न्स आते हैं कोई नहीं बात करता है कि आपके साथ कोई वायलेंस हो या फिर आपके कोई कमेंट करे या कोई सेक्सुअली कुछ चीजें हो तो आप हमें बताएं। इवन कोई वॉलंटियर्स को ट्रीट भी नहीं करता है उस तरीके से। लोग बात करेंगे अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की, लोग बात करेंगे अपने पॉलिसीज की, अपने काम की, पर लोग ये नहीं सोचते कि जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं हमारे पास, इंटर्न्स आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी, उन्हें वो प्लेटफॉर्म कब मिलेगा जब वो आकर हमसे बोल सके हाँ आपके स्टाफ ने हमारे साथ ये बोला है। आप उन्हें को प्लेटफॉर्म भी नहीं देते हैं और वो वहीं पर कट हो जाता है कि बहुत सारे, मैंने अपने ही ग्रुप्स में देखा है, बहुत सारी महिलाएं जो ऐसे मजाक बर्दाश्त कर जाती हैं और वो सोचते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, इस आदमी का तो कुछ नहीं होने वाला, दीदी मुझे ही निकाल देंगे, मुझे बच्चे भी पालने हैं अपने। तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारी औरतों को रोक रही हैं आज भी कि वो खुलकर काम कर सके। और डेवलपमेंट सेक्टर में जब ये चीजें होती हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है कि हम जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों को हम लोग अपने बीच भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah, and बहुत बार like in theory, you know, they believe in all these values, but in practicality, my experience is even within, you know, their organization, you can see के वो ऐसा, you know, नहीं सोच रहे हैं. At least on some things, the sensitivity is not there. Yeah, Sadia, what about you? आपका क्या क्या experience रहा है? Like regarding my experience, so obviously like there are so many challenges to face. जब से start किया तब से अब तक, इनफैक्ट वहां जाके उस सोसाइटी में जाके बच्चों को कन्विंस करना कि हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं, जबकि हम उनके लिए जा रहे हैं, वो अपने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक बाज दफा क्या होता है कि बच्चों को हम बैठते हैं कि क्या टीचर्स आए हम पढ़ा रहे हैं, दे आर लाइक कि जब वो थोड़ा बोर हो जाते हैं एक दिन दो दिन एक सेम टीचर को देख के, दे आर लाइक कि यार आप क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, मेरे फादर तो ठेला चलाते हैं तो मुझे भी कल वही चलाना है। तो हम उनको इसी तरह कन्विंस करते हैं कि बेटा हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप ठेला नहीं चलाओ। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ कमिंग देयर एंड टीचिंग यू। वर्कशॉप के लिए क्या होता है कि अक्सर बच्चों को हम पकड़ के ला रहे हैं घर से, तो उनके पेरेंट्स इन चीजों में काफी सपोर्टिव होते हैं कि आप लेके जाओ, देखो वहाँ छुपा हुआ है, वो वहाँ खेल रहा है, वो भी मदरसे गया है, वो आ नहीं रहा है, तो बच्चों को उठा उठा के लाओ पढ़ाने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम फेलोज रिक्रूट करते हैं जो बेसिकली उनको पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि एट द एंड वो एक स्लम एरिया है और स्लम एरिया से रिलेटेड काफी स्टिग्मास होते हैं, जो फैमिलीज को काफी इश्यूज होते हैं, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में काफी फेस किया है कि एक स्लम एरिया है, सेफ नहीं है, हाइजीनिक इश्यूज हैं, तो जाने की परमिशन का काफी इश्यूज रहता है हमेशा से ही। तो अब तो खैर काफी हद तक वो ओवरकम कर लिया है मैंने, लाइक वो खत्म हो गया, बट अब भी काफी फेलोज वो चीज फेस करते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और बीच में उनको छोड़ना पड़ता है कि हमारी फैमिली से परमिशन नहीं मिल रही है, वहाँ बहुत डस्ट है, हमें एलर्जीज हैं और स्लम एरिया है, दूर है, तो काफी इश्यूज हैं, और वी नो लाइक वेयर वी आर लिविंग। तो उसके लिए फिर हम उनको वही बताते हैं कि ठीक है आप बीच में छोड़ दोगे कोई बात नहीं, बट आपका कोई लॉस नहीं होगा, हमारा कोई लॉस नहीं होगा, एट उस बच्चे का लॉस होगा जिसको हमने होप दी है कि हम आपको डेली आएंगे यहाँ पढ़ाने के लिए, हम आपको स्कूल में एनरोल कराएंगे, हम आपके यूनिफॉर्म खरीदेंगे, कोर्स खरीदेंगे, तो एट द लॉस सिर्फ उसका हो रहा है, ना आपका ना हमारा, आपका बस एक सर्टिफिकेट चला गया। एंड कमिंग टू व्हाट पेट्रियार्कल चेंजेस दैट वी सी, सो मैंने क्राइम में भी काम किया, एचएफआई में काम किया, सो लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों से मैं मिली हूँ अभी तक काफी सपोर्टिव रहे हैं, काफी like they all appreciate my work, they all are happy with what I'm doing, but when it comes to family and relatives, so उसमें
आई डोंट नो अभी और कितने साल लगेंगे हमें ग्रो करने में, ये बताने में कि लाइक व्हेन अ गर्ल इज गेटिंग एजुकेशन, तो बस वो टिक मार्क नहीं लगाने कि स्कूलिंग हो गई टिक मार्क, ग्रेजुएशन हो गई टिक मार्क, मास्टर्स हो गया टिक मार्क, ठीक है, शादी हो गई टिक मार्क। उसके अलावा बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं किसी के, और किसी को कुछ पैशन हो सकता है काम करने का। इन सब के अलावा लाइक देयर इज स्ट्रेट लाइन जो आपको ऐसे ही सारे काम करते हुए जाने हैं, ऐसे लाइक वो घोड़े की नाल लगा लो, सीधे चलते हुए जाओ और फिर सब सॉर्टेड है। उसके अलावा लाइक व्हेन अ गर्ल कम्स विद अ ड्रीम या किसी पैशन के साथ, मुझे ये करना है या मेरी ये हॉबी है, मुझे इसको परस्यू करना है, तो उसके लिए अभी भी लाइक एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज बाय दिस कि आज के टाइम पे भी क्यों एक यंग वुमेन को इतना ये सब फेस करना पड़ रहा है, कि उसको लिटरली स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि एक बहुत बेसिक सा ड्रीम है जिसमें वी आर ट्राइंग टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज। तो because there is one thing that I always say, that we all are privileged enough, and it is our duty to help those underprivileged. You know, like we need to use our privilege in a very good direction. So it's not like कि ठीक है बहुत पैसे हैं, यहाँ चले गए वहां चले गए, उड़ा लिए, मजे कर लिए, ठीक है, we all are students, तो उतना ठीक है, we all do। लेकिन कितना बेहतर होगा अगर हम एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि हम तो एजुकेशन ले ही रहे हैं, बट एजुकेशन सब डिजर्व करते हैं, हम भी, वो अंडर प्रिविलेज बच्चे भी, तो वो सबका राइट है, तो हमारे अलावा उनको भी मिलनी ही चाहिए। और इनफैक्ट वर्किंग विद मेन, तो मेरे साथ ये मैंने ये चीज फेस की एक्चुअली, क्योंकि ठीक है, लाइक आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ, मैंने यूथ में चीज देखी, ठीक है, ये एक लीडर है जो कि एक औरत है, तो हम इनकी बात क्यों सुनेंगे, तो हम इनके अंडर क्यों काम करेंगे, क्यों, ठीक है, आप मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं सुनना आपकी बात, आप क्यों ऐसे मुझे बताओगे। सो वी आर लाइक, देखो यहाँ पे कुछ ऑर्डर वाला ऐसा हो नहीं रहा, हम सब मिलके एक ही कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। सो एट द एंड हमारा काम है उन बच्चों की हेल्प करना, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने ऑर्डर दे दिया आपने कर दिया। तो ग्राउंड लेवल पे मैं भी जाती हूँ, बीइंग डायरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ भी जितने भी काम होते हैं सब, शॉपिंग हम भी करें, इवन दो वी हैव अ लॉजिस्टिक्स टीम, इवन दो हमारे पास जितनी भी अलग सारी डोमेन्स की टीम है, बट हम ग्राउंड लेवल पर सारे काम कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसी कोई हायरार्की ऐसा नहीं है कि हाँ लीडर है तो उन्होंने बस बोल दिया और काम टीम को करना है। उसके बाद भी आई फेस दिस इशू कि ये एक औरत का मैं ऑर्डर क्यों सुनो, मुझे नहीं सुनना। कोई मेल होता तो ठीक है, मैं शायद देखता भी। तो ये चीज मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग थी, लाइक आज के टाइम पे ये भी हो रहा है। So these are the challenges that we face. Navkiran, so Amreen ने एक बहुत ही बेसिक चीज मेंशन की about toilets, about and there's so many women participating in the farmers movement. तो ये जाहिर है ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। ठीक है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, but what that can be done, because I have had the same experience. हम मेवात में काम कर रहे थे एंड काफी दिल्ली से ये थोड़ा राजस्थान साइड पे था, सो 2 घंटे आराम से लग जाते थे। एंड मेरा थॉट प्रोसेस भी यही होता था कि ओ रास्ते में एक तो कौन से टॉयलेट्स मिलेंगे एंड फिर वहाँ जाके सो ऑफ कोर्स इट इज अ चैलेंज, वी डोंट वांट टू लाइक फोकस द डिस्कशन on that, but in a broader way, just what can be done to overall have more like women's perspective on everything. It should show in the society in every different way, and toilets are just one example of something very, very basic, right? Navkiran talked about like the recognition किचन के काम, उस लेबर का रिकग्निशन। फार्मर्स कितने ज्यादा वुमेन फार्मर्स होते हैं जिनका बहुत लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है कि लोग बोलते हैं ना जैसे कि इट्स women are not working, not when in fact you see in rural areas farming में तो women हैं ही, हमेशा होती हैं and काफी hard labor कर रही होती हैं, and they obviously don't get paid the way men get paid, तो वो तो है ही। So just like overall what can change, you just need more women to be part of every area that participation. What else? Laws, voices, media may just what your thoughts are. Maybe Navkiran, since you're a little bit in the media as well as in the movement and you're a dentist, whatnot.
I became a journalist very recently, so, and that was like by chance. So, yeah, but you're right. We have to occupy every sphere of life. मतलब वो सड़कें हो, वो बाजार हो, वो काम की जगहें हो, वो हर स्पेस हमें ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी और हर माध्यम से वो आवाज उठानी पड़ेगी, बिकॉज हम तो यहाँ पे मतलब मैं मोर्चे के बारे में, मोर्चे के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकती हूँ क्योंकि मैं मोर्चे का हिस्सा थी। सादिया और अमरीन अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे हैं। बट वी कैंट फॉरगेट द फैक्ट कि हमारे देश में अभी भी हजारों की गिनती में लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग मेंस्ट्रुअल। तो उसका कारण यही है, स्कूलों में वो इंतजाम नहीं है। सरकारी स्कूलों में जाके देखिए क्या हालत है। मतलब पिछले दिनों में बहुत सारे मीडिया स्टोरीज इस पे आती रही हैं कि किस तरीके से वहां पे कोई टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, या वो टीचर बच्चों को भेज देते हैं कि अच्छा जाओ अपने कहीं घर जाके फिर वापस आ जाना है ना। किस तरीके से मतलब इन सारी चीजों को सीरियसली लिया भी नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि वही है, मतलब बहुत बेसिक बात है यार, बहुत बेसिक जरूरत है वॉशरूम का होना। एंड जस्ट इमेजिन द फैक्ट दैट महिलाएं जिनको शुरू से मान्यता है एक जेंडर के तौर पे सदियों से, वो 21वीं सदी में बैठ के इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही है कि भाई मेरे लिए वॉशरूम होने चाहिए। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन फॉर थर्ड जेंडर और अदर क्वेयर आइडेंटिटीज। उनके लिए तो मतलब किसी का दिमाग में ही नहीं है कि ऐसा भी कहीं पे कोई जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम भी समाज में होने चाहिए। तो ये बहुत छोटी बात है सुनने को कि अरे यार वॉशरूम में क्या दिक्कत है, अपने घर में जाओ। लेकिन हमें पता है कि वो हमारी जिंदगियों को किस तरीके से शेप कर रहा है, वो एक समस्या। लाइक जैसे अमरीन ने बताया कि वो महिलाएं सारी की सारी काम छोड़ दी। मतलब आज के दौर में जहाँ पे लोगों को गुजारा नहीं चल रहा है, अगर दोनों मतलब अगर फैमिली में दोनों कपल काम नहीं कर रहे हैं तो परिवार चलने मुश्किल हो रहे हैं। वैसे जॉब स्कैर्सिटी इतनी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। उसमें कुछ महिलाओं को नौकरियां मिली किसी फैक्ट्री में तो उनको छोड़नी पड़ गई। जैसे इमेजिन उनकी क्या बुरी स्थिति थी जो उनको छोड़नी पड़ी। तो यही है कि ये में चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमें बार बार उठाने पड़ेंगे। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो कोई मूवमेंट के बीच मतलब चलती हुई मूवमेंट के बीच अपनी बात रखने का जरिया हो, या ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो आजकल हम पेंडेमिक के दौरान वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें हो, या कहीं पे भी हमें सरकार से इंटरेक्ट करने का मौका मिले वहां हो, हमें ये बात रखनी पड़ेगी। यार मतलब कितनी त्रासदी की बात है। एक तरफ हमारी सरकार दावा कर रही है कि जी हम इतने लाख शौचालय बना दे। मतलब आजकल दिल्ली में घूमो तो दिल्ली में क्या हुआ पता नहीं चलता, लेकिन यूपी में क्या 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 हुआ वो सब पता चलता है, क्योंकि हर चौराहे पे यूपी में इतने लाख ये हो गया, यूपी में इतने लाख ये हो गया, यूपी में इतने लाख ये हो गया। मतलब वो हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, उसमें कितना पैसा लगा नहीं पता, लेकिन वोटिंग में कितना पैसा लगा वो हमें पता है ना। तो एक तरफ तो आप दावा कर रहे हो कि लाखों की गिनती में आप शौचालय बना दिए, और दूसरी तरफ आपको ये समस्या दिख नहीं रही कि महिला इस टाइम घर से निकलने के लिए भी हजार बार सोचती है कि अगर बाजार में जाके पेशाब आ गया तो यार मैं वॉशरूम कहाँ जाऊंगी। तो मतलब ये हमारी स्थिति है। हमारे साथ जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के साथ खेला जा रहा है। तो हमें रियलिटी दिखाई नहीं जा रही है, बस हमें भ्रम में डाला जा रहा है कि नहीं नहीं देखो देखो हो तो बहुत कुछ रहा है। मतलब वो हो कहाँ रहा है वो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम भरोसा रख के चलो कि बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें हर फ्रंट पे, वो पॉलिटिकल हो, वो डेवलपमेंट सेक्टर हो, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह महिलाओं को लड़ना होगा। बड़ी से बड़ी गिनती में महिलाओं को निकलना होगा। मतलब पहले एक बारी जब 2012 वाला दिल्ली जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद पूरा जो एक जेंडर जस्टिस का मूवमेंट चला था, उसमें ये बात खुल के बहुत सारे महिला ऑर्गेनाइजेशनों ने कही थी कि भाई हम तो रात को भी बाहर निकलेंगे, हम तो रात को भी रिक्लेम करेंगे। तो वही मुझे लगता है कि हर फील्ड में तरीका वही होगा कि अगर हम लाखों की गिनती में सड़कों पे होंगे, अगर हम लाखों की गिनती में हर सेक्टर में होंगे, तो फिर उनकी मजबूरी बनेगी हमें सुनने की
तो इसलिए मुझे लगता है वही एक तरीका है, मतलब स्ट्रगल के बिना तो मुझे लगता नहीं यहाँ कुछ मिलेगा। नहीं, हाँ, कहीं भी नहीं होता है। I wanted to let everyone know, you can post, if you have any questions, you can post them on the chat and we'll take them. You know, I'll keep scrolling. So please feel free to ask your questions. नवकिरण, एक क्वेश्चन और था मुझे कि लास्ट जो था हमारा पिछला वाला प्रोग्राम इवेंट था, उसमें निकिता ने बात करी अबाउट यू नो हर चैलेंजेस विद हर एडिटर्स, you know, about because of being a woman, right? I mean, there were places they wouldn't send her because she was a woman, or there were, you know, maybe pieces, articles that she wanted to write, but they didn't support her. So in this team, first, can you talk about ये जो आपने शुरू किया है, Trolley Times, उसमें और कितनी औरतें जुड़ी हुई हैं? And have you had similar experiences, you know, in terms of some stories, narratives that you had a woman's perspective and you had kind of pushback or anything like that? या नहीं हुआ तो अच्छा ही है बहुत, अगर ऐसा है। नहीं, ऑनेस्टली मेरी स्ट्रगल नहीं रही, ऐसा नहीं है। आई हैड माय ओन स्ट्रगल्स इन द लाइक ट्रॉली टाइम्स टीम, व्हिच इज अ वेरी स्मॉल टीम, एंड इंटरेस्टिंगली इट्स अ प्रोग्रेसिव टीम बिकॉज़ द होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट. So in a way it's a progressive circle, but still I had my share of struggle. So the thing is, मुझे दो तीन चीजें इसमें लगती हैं कि एक तो जो महिलाओं के साथ हमेशा किया जाता है ना कि तुम्हें खतरा है, मतलब हमारी सेफ्टी के नाम पे, हमारी सेफ्टी के नाम पे हम ही लोगों को बोला जाता है कि क्योंकि तुम लोगों को खतरा है इसलिए हम तुम लोगों को नहीं भेज रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि हमारे मतलब सब प्रोटेक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं समझ मतलब कंसीडर करते कि भाई जिससे खतरा है उसको रोको ना, खतरे को खत्म करो, मतलब उसका जिम्मा हम क्यों। जैसे इसमें बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आई स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, prestigious institute, I did my dentistry from there. So पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता था, बहुत मतलब 3-4 साल पहले तक, अभी वो शायद बंद हुआ है, ये होता था कि होली के दिन सारे गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बंद रहते, मतलब कोई अंदर ना घुस सकता है ना कोई महिला बाहर जा सकती है, पूरा होली के दिन गर्ल्स हॉस्टल एकदम बंद, सील टाइप। हमने उस पर बहुत बड़ी हंगामा किया कि भाई ये क्या मतलब है, होली के दिन गर्ल्स हॉस्टल बंद क्यों रहेंगे। बोला नहीं, क्योंकि आपको बाहर लड़कों से आप सेफ नहीं हो, बाहर आपको खतरा है इसलिए आपको बंद रखा जाएगा। मैंने बोला यार समाज की एग्जांपल ले लो, समाज में जो गुनहगार होता है, जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा होता है, उसको जेल में रखा जाता है ताकि बाकी समाज खुला घूम सके, वो आजाद रहे। आप उल्टा कि जो तो क्रिमिनल है वो तो घूमेगा, जिससे हमें खतरा वो तो घूमेगा, लेकिन क्योंकि आप सेफ नहीं हो तो इसलिए आप जेल में रहोगे। तो वही होता है कि हमारी सेफ्टी के नाम पे बेसिकली हम ही को रोका जाता है, जो क्रिमिनल है उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको बाहर घूमने देंगे, या उस मानसिकता से लड़ेंगे नहीं जो हमें उस वल्नरेबल स्थिति में डालती है। तो मुझे लगता है ये समस्या हर फील्ड में है, वो जर्नलिज्म का हो, वो मतलब इनका डेवलपमेंट सेक्टर का हो, वो पॉलिटिक्स हो, हर जगह ये होता है कि अरे तुम नहीं जाओ। मतलब कितनी कम महिलाएं क्रिमिनल रिपोर्टर्स बन पाती थी, क्योंकि ओ नहीं महिलाएं तो ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगी, उनके लिए तो सेफ नहीं होगा, उनके लिए तो ये नहीं होगा, ये सब किया जाता है। तो मतलब निकिता इज राइट कि बहुत बार बहुत सारी महिलाओं को हर सेक्टर में ये सारी समस्या, ये टाइमिंग को लेके कितना होता है, मतलब महिलाएं नाइट शिफ्ट नहीं वाली जॉब जनरली वो झिझक जाती है कि यार रात को मैं तो सेफ नहीं हूँ तो मैं ये नहीं लूंगी, या लेट नाइट किसी को दिल्ली जैसे शहर में लेट नाइट किसी का जॉब छूटना है तो उसके लिए सेफ्टी बड़ा कंसर्न बन जाता है कि यार मैं कैसे पहुंच पाऊंगी घर तक। तो इसलिए बात वही है कि हमारा समाज ये कभी कंसीडर नहीं करता कि हमें खतरा किससे है और उसका क्या इंतजाम किया जाए ना, आपको खतरा है तो आप अंदर रहो। तो मुझे लगता है इसको बार बार चैलेंज करना होगा। लकीली मतलब मुझे इस तरीके की दिक्कतें नहीं हुई, प्रोटेस्ट साइड पे ये होता था हम 12 बजे भी घूम रहे होते थे, 1 बजे भी घूम रहे होते थे, वो लोड नहीं था। बट डेफिनेटली वहां पे भी स्टोरी का क्या एंगल होगा, मतलब मैंने देखा है महिलाएं क्योंकि
पता नहीं हम खुद पीड़ित वर्ग से आते हैं तो हम ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे मुद्दों को, दर्द होता है चीजों को देखने का एज कम्पेयर टू लाइक स्ट्रेट मैन। सो बहुत बार इन चीजों पे हुआ कि नहीं यार, मतलब मुझे ये लगता है इस पे ये होना चाहिए, कि उनको लगता है कि नहीं। एंड इंटरेस्टिंगली कोर टीम में आई वाज द ओनली वुमन, सो मेरा बाकी 5 मर्दों के साथ भिड़ रही हूँ कि नहीं ये है तो है, मतलब अगर महिला मुद्दे पे लिख रहे हो तो मेरी बात मान लो, तुमसे तो ज्यादा ही पता है मुझे। तो इस तरीके की बिल्कुल मतलब वहां पे भी बहसें हमारी होती थी। और उस एक चीज मैंने रियलाइज की, आपको ये देखना होगा कि कौन चेंज के लिए तैयार है। मतलब ये जब मैं ये सब बात कर रही हूँ उसमें एक चीज जो मैं बहुत ध्यान में रखना चाहती हूँ वो है इंस्टा पूरा सोशल मीडिया के दौर में जो पूरे कैंसिल कल्चर चला है ना, कि किसी ने भी कुछ भी गलत बोल दिया तो मतलब उसके खिलाफ तो ऐसे कैंपेन चला दो जैसे उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये बात एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि हम सब उसी समाज में से आते हैं, हम सबके दिमाग में समाज ने किसी न किसी किस्म का कूड़ा भरा है, तो हमें सबको मौका जरूर देना चाहिए। हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि सामने वाला हमारा अलाय है या सच में हमारा दुश्मन है। अगर कोई तो बोले कि यार मतलब लाख समझाने के बाद वो कहे कि नहीं मैं तो मनुस्मृति को ही मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ औरत पैर की जूती है, तुम लाख कर लो, तो वो हमारा अलाय नहीं हो सकता। अब किसी को जेंडर के मामले में कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको नहीं पता चल रहा कि महिला अनकंफर्टेबल मतलब मैंने कुछ बोल दिया, जैसे यही अमरीन बात कर रही थी, कई बार वो ऐसे मजाक कर देते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा इसमें बुरा लगने वाला क्या था जो इसको बुरा लग गया, है ना। उनको पता भी नहीं चलता कि इसमें बुरा लगने वाला था क्या। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ हमें सिस्टमेटिकली एंगेज करने की बहुत जरूरत है कि एटलीस्ट उनको पता तो चले कि वो जो बोल रहे हैं उसमें गलत क्या है, क्योंकि उनको सदियों सदियों तक वही समझाया गया है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही तो है, उसमें दिक्कत क्या है। तो उनको समझाना होगा कि नहीं भाई ये गलत है, तभी तो वो चेंज करने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है उसमें बहुत सेंसिटिविटी, इंटरसेक्शनलिटी को बहुत हमें समझना होगा, उसमें कास्ट कैसे रोल प्ले करती है, उसमें रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे रोल प्ले करती है, उसमें आपका जेंडर कैसे रोल प्ले करता है। ये सारी चीजों को देखते परखते हुए कौन किस क्लास बैकग्राउंड से आया है, कौन किस रीजनल बैकग्राउंड से आया है, इन चीजों को कंसीडर करते हुए आपको धीरे धीरे लोगों को आगे लाना होगा। अगर कैंसल कल्चर में चलेंगे तो मुझे लगता है कई दफा कि यार फिर तो सब दुश्मन बन जाएंगे, मतलब फिर तुम्हारा लाइफ तो कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ना ये एंगेजमेंट बहुत जरूरी है इन चीजों को लेके। क्योंकि पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन पंजाब, मानसा, मतलब लोग पंजाब के लोगों को नहीं पता होता कि ये कहाँ पे है। तो उस शहर से आके मेरा जो पूरा जर्नी रहा है दिल्ली तक पहुंचने का, मुझे पता है उसमें मैं कितनी बदली हूँ। मेरा जेंडर को लेके मतलब क्वेयर रिलेशनशिप्स को लेके मेरा जो समझ था, या कह लो कि कास्ट को लेके मेरा जो एक्सपीरियंसेस थे, खुद जेंडर को लेके, मतलब कई बार हम ही नहीं समझ पाते कि अच्छा ये लिमिट मैं क्रॉस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। हमें भी इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस तो हम खुद ही लगाते हैं अपने ऊपर कि नहीं महिला हूं मैं ये नहीं कर सकती, ये मॉरली गलत हो जाएगा, या ये सोशली गलत है, ये कल्चरली गलत है। वो ही समझने में इतने साल लग गए कि यार मतलब मैं एक इंसान हूँ, महिला हूँ पुरुष हूँ मतलब नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, जो राइट किसी और के पास है वो मेरे पास है, उसको समझने भी इतना टाइम लग गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको वो मौका जरूर मिलना चाहिए। Yeah, very good point. So actually cancel culture, this is not just in India, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। And I think there's one topic which I would love to have a discussion on at some point, which is the role of social media. Social media बहुत powerful platform भी है, but वो divisiveness क्रिएट करने में उसका बहुत रोल है, वेदर इट्स व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड द ब्रेक्सिट मूवमेंट, या यहाँ यूएस में या इंडिया में, तो डेफिनेटली उसका कभी हम लोगों को इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन, वी शुड डू दैट। But I think this specifically is for Amreen. एक question आया है आबा नूर का, how to help women who don't want to help themselves, and I'm talking in regards to domestic violence. ये question, I know we're a little out of time, so maybe 5 minutes और
रखते हैं to wrap it up. And before we go, नवकिरण ने तो काफी कुछ बोला है कि आगे बढ़ने के लिए और क्या करना है. More power to her, more power to all the women. लेकिन closing thoughts में अगर सारिया और अमरीन आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा बोलें. But Amreen, before that, since you work on domestic violence, if you can answer Aba's question. Yasmin, ये जो क्वेश्चन है हाउ टू हेल्प women who don't want to help themselves, ये मुझे बहुत अधूरा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये एक जजमेंट ही हो जाता है. जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में काम करते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जजमेंट होता है कि ये औरत ही नहीं डाइवोर्स लेना चाह रही, एफर्ट्स ही नहीं डाल रही है. तो आभानूर, मुझे ऐसा फील होता है और ये मेरा ही एक्सपीरियंस है कि हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए. हम अपने डिसीजन, अपना थॉट कभी थोपे ना. जितना हम उन पर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है, आप उस वक्त सही कहकर उस चीज़ को करा तो सकते हो, पर वो ना दिल से करेंगे और ना ही उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आगे लीड कर सके. क्योंकि कोई भी जर्नी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी ना एक जर्नी की तरह हो गया है अब औरतों की ज़िंदगी में, कि वो पूरा 1-1.5 साल, 2 साल, 10 साल उसे झेलती हैं. उसके बाद फिर एक नई जंग लड़ती हैं वो पूरी सोसाइटी के साथ, जब वो केस लड़ रही होती हैं या फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं. बीइंग अ सिंगल मदर, फिर एक कम्युनिटी में एक जंग शुरू हो जाती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी लगने लग जाती है जो दूसरे आदमी होते हैं. तो कभी भी जब भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे लगता है कि आप उन्हें सुने. पहले जो सबसे पहला स्टेप मैं सबसे कहती हूँ कि सुन लें आप उन्हें, जो बोल रही हैं, जैसा बोल रही हैं, जितनी समझ से बोल रही हैं, आप सुनते रहें उन्हें और उन्हीं की बातों से सल्यूशन निकालें. आप ये मत बताएं कि यहाँ चली जाओ, यहाँ पर ये वकील बैठा है, ये कर देगा, यहाँ पर ये एनजीओ है, ये कर देगी, यहाँ ये दीदी है या ये आंगनवाड़ी है. कुछ मत दो उन्हें, पहले उनका सुन लो. जब वो पूरा निकल जाता है तो उन्हें खुद भी रास्ते समझ में आते हैं और शायद वही एक तरीका होता है इन केसेस में लंबी लड़ाई और आगे उन्हें मजबूती से लड़ने का. बिल्कुल, मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस पे वर्क किया है एंड it takes a lot of courage, a lot of effort. बहुत सालों का अब्यूज सह के वो कदम उठा पाती हैं. बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं. फाइनेंशियल सिक्योरिटी of course is important, but then it's also the children, उस पे क्या impact होगा. There's a lot of cultural background जिससे वो आ रही हैं, to kind of get out of that. So it's not that easy. एंड आउटसाइडर को लगता है कि कैसे तुम सह सकती हो इतना वायलेंस, इस अनसेफ उसमें घर में कैसे रह सकती हो. But it is kind of not easy. That's all I can say. So आबा ने थोड़ा और लिखा है, which is you probably are able to read, Amreen. She's written, I worked in shelter homes and the organization I was working was there along with the rescue team. But what did we face? The women turned on to us, telling us that we educated women are home breakers. So that's a very valid point. I think जो आबा बोल रही है, ये एक this is another issue I've observed. ये class difference है. कि हम जो privileged background से आ रहे हैं, educated families से आ रहे हैं, हमारी सोच बहुत different है. And when we go out and try to work with communities in which they have not had that kind of experience, that exposure, that education, वो सब, तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे ऐसा कैसे सोच सकते हैं. But I can also see उनकी तरफ से वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, because वो एक बहुत बड़ा फर्क है उस क्लास और हमारी क्लास में. And again, I think it's important to understand, not to be judgmental, but see from their perspective why they're saying that. And उनका अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस भी होगा. सब यही बोलते होंगे कि ये तो होम ब्रेकर्स हैं, इनका सुन रहे हो and all that. So yeah, it's a very I'm sure many shelter homes, many organizations experience that. But इस पे कुछ बोलना है अमरीन? Any comment?
ये जो उन्होंने शेल्टर होम की बात करी है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी औरतें मुझसे भी बोलती हैं ये बात कि आप पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता है। पर बात ये होती है यास्मीन जी कि इसमें सबसे ज्यादा है कि वो इमोशनली इतना टूट चुकी हैं, इतना ज्यादा इमोशनली, मतलब हम शायद उस चीज पर सोच भी नहीं सकते जो इस चीज से वो गुजर कर आई हैं। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं को आज तक देखा गया है वो सब्र करने वाली, इस तरीके इन नजरियों से देखा गया है, तो उनमें भरा होता है और उन चीजों को लेकर बहुत समय भी लगता है वो सब चीजें तोड़ने में। बैरियर जो हमेशा ये जो आपने क्लास बैरियर का थोड़ा सा बताया, ये चीज होती है, ये शायद हमारे साथ भी होती है, उनके साथ नहीं हमारे साथ भी होती है कि हम लोगों को भी डिफरेंस लगता है कभी कभी चीजों में। पर शायद यही हमारे काम की भी एक मजबूत चीज है कि कुछ भी हो हमें करना है वो काम। और शायद वायलेंस के केसेस में आभा के साथ जो होता है ये शेल्टर होम्स में, ये शायद बहुत और भी होगा, जितने वो केसेस आगे करेंगी उतना ज्यादा होगा। उसमें वो डिसहार्टेन ना हो, बस ये होता है कि हमें उन्हें हेल्प करना है, कि हम सुने उन्हें कि वो चाह क्या रही हैं और कोशिश करें कि हम उन्हीं के एग्जाम्पल्स ला कर दें। मेरे हिसाब से जो रोल मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है जो हम थ्योरीज में भी पढ़ते हैं, ये बहुत इफेक्ट करता है हर केस में। अगर उन्हीं की कम्युनिटी की कोई औरत उस केस को जीती है या फिर वो आगे स्टेबल हुई है, तो लेडीज में खुद बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। मैंने बहुत करा है अपने केसेस में कि जो महिला 10 साल से पिट रही थी, आज वो 25,000 कमा रही है अपना, तो उन्हें आप प्रेजेंट करिए, उन्हें एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनाकर रखिए कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये सह चुकी हैं और आगे बढ़ रही हैं, मैं नहीं हूँ चलिए, पर ये लोग तो है ना। और वो जब समझाती हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी नई बातें भी निकल कर आती हैं। Yeah, and इसमें शानिया made a good point कि even in upper class, she's seen there are women who think educated women are home breakers, and I have experienced that quite a bit. So yes, agreed. And I just want to read a comment. The fact that only uneducated or poor women are unable to break free of their marriages or relationships due to domestic violence is a myth. I completely agree because the organization I was working in, there were cases I heard of people from very, very rich, educated background. I was working at Intel at that time, and there was, a case of some Intel's vice president's wife, so highly educated, and yet we, same experience. So we're really out of time. We're already 15 minutes kind of, late. So just want to close it up. Any last comments, Sadia, because you didn't get a chance to, speak, Abhi. So No, that's totally fine because I just loved hearing Navkirna and Amrit. You guys are doing such great work. Seriously, मुझे बहुत मजा आया सुनने में, to be honest. And adding to what Navkiran said, कि कई बार हम खुद अपने लिए लिमिट्स काफी एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि ये काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है, हम सुनते रहे तो हमारे दिमाग में वो बैठ गया है काफी हद तक। तो हमने खुद ही अपने लिए काफी तक बाउंड्री सेट कर दी है। सो इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क कि हमें एक रिस्क तो लेना है, हमें निकलना है, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल करना है, करते आ रहे हैं। आई एम जस्ट 23 अभी, तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने काफी स्ट्रगल देख लिया, आई एम श्योर आगे बहुत देखना है, तो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट द थिंग इज कि रिस्क लेना है ऑब्वियसली, तो एक स्ट्रगल से निकलने पे एक लिमिट क्रॉस करनी होगी ताकि आगे बढ़ पाए, देख सकें कि और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं। So yeah, that is one very good point that you made, and we all need to work on that. And since we all are very much privileged, I think we all need to use our privilege in a very good direction. Great last minute thoughts. Thank you, everyone who joined us today. Thanks, Navkiran, Amreen, Sadia. I'm so glad. I really enjoyed the discussion, and I hope everyone else did too. And let's hope that more women are inspired by all of you and join and are out there in every space. We need to, like Navkiran said, occupy every space we can, or at least have our presence. And that's really the only way forward.
So thanks everyone, and stay tuned for our next event, which is also going to be on women. Nari, we're basically planning to have 4, and this was our second one. So 2 more to go. Good evening, and see you again.